Hello dear students, welcome back to my channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा लास्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री दैट इज़ द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870s to 1947. तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं. तो ओवरऑल दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू. सो इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल टिल नाउ, प्लीज़ गेट इट सब्सक्राइब बिकॉज वी ब्रिंग so interesting videos and pure education for all of you. So please subscribe our channel. So चलिए start करते हैं. मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870s to 1947. In the previous chapter, we have looked at the British conquest of territories and takeover of kingdoms, introduction of new laws and administrative institutions, change in lives of peasants and tribals, educational changes in 19th century, debates regarding the condition of women, challenges to the caste system, social and religious reform, the revolt of 1857 and its aftermath, the decline of craft and growth of industries. तो ये सारी चीज़ें तो हमने देखी थी अपने प्रीवियस चैप्टर्स में, राइट. अब हम लोग जो है यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं. ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव रेड ऑन दीज इश्यूज, डू यू थिंक इंडियंस वर डिसकनेक्टेड विद द ब्रिटिश रूल? इफ सो, हाउ वर द डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस डिससेटिस्फाइड? चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर की रीडिंग से. द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म. सबसे पहले नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? नेशनलिज्म का मतलब होता है कि हमारे वहाँ के लोग किसी चीज़ को दे बोलते हैं और कहते हैं कि भाई अगर आप लोग इंडिया कंट्री को रूल कर रहे हो, जब आप इंडिया लोगों का डिमांड पूरी नहीं कर रहे हो, आपके वहाँ कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इंडिया का नहीं है, वो नहीं है, तो आप कैसे इंडिया पर रूल कर सकते हो, है ना. बहुत सारे क्वेश्चन उठे, इसकी वजह से ब्रिटिश को जो है कहीं ना कहीं इंडियंस का कहना मानना पड़ा और बहुत सारे चेंजेस हुए. तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म. The above-mentioned development led the people to ask a crucial question: what is the country of India and for whom is it meant? The answer that gradually people, gradually emerged was India was the people. India was the people of India. All the people, irrespective of caste, color, caste, creed, language, or gender, and the country, its resources and systems were meant for all of them. ठीक है. तो वही जो डेवलपमेंट हुए, इससे लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा. वो क्वेश्चन ये था कि ये जो इंडिया की कंट्री है ये किसके लिए है और ये किस चीज़ के मेंट करती है. सेकेंडली जो आंसर आया वो ये आया कि जो इंडिया है वो सारे इंडिया के लोगों के लिए है, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर, क्रीड, लैंग्वेज और जेंडर. एंड द कंट्री इट्स रिसोर्सेज, जो इसके रिसोर्सेज है ये सारे रिसोर्सेज भी उन लोगों के लिए है. With this answer come the awareness that the British were exercising the control over the resources of India. तो पहले मैं इसमें पूरा पढ़ती हूँ, फिर आपको एक एक करके मीनिंग बताऊंगी, ठीक है. Resources of India and the people, lives of its people, and until this control was over, the India could not be for Indians. The consciousness began to be clearly stated by political association formed after 1850, especially those that came into being in 1870s and 1880s. Most of these were led by the English educated professionals such as lawyers. The more important ones were the Pune Sarvajanik Sabha and the Indian Association, the Madrasa Mahajan Sabha, the Bombay Presidency, the Association, and of course the Indian National Congress. Note the name Pune Sarvajanik Sabha. The literal meaning of Sarvajanik is of or all for the people. Sarva all plus Janik for of the people. Though many of these associations function in specific part of the country, their goal was stated as the goal of all the people of India, not those of any one religion, community or class. They worked with an idea that people should be sovereign. Sovereign का मतलब होता है the capacity to act independently without outside interference, यानी कि हमें पूरी इंडिपेंडेंस मिल जाए.
a modern consciousness and a key feature of nationalism. In other words, they believe that Indian people should be empowered to take decisions regarding the affairs. तो अब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, कॉन्शियसनेस जो थी धीरे धीरे दिखने लग गई थी जब पॉलिटिकल एसोसिएशन जो है 1850 के बाद आई। तो जो 1850 1870 से 1880 में आई, ज़्यादा तक उनमें देखी गई। जैसे बहुत सारी जो एसोसिएशन थी, ज़्यादातर इंग्लिश एडुकेटेड लोग देखते थे, बट क्या होता था, बहुत सारे लॉयर्स थे, और सबसे इम्पोर्टेंट वाले थे पूना सार्वजनिक सभा और इंडियन एसोसिएशन, मद्रासा महाजन सभा, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट थी द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब जो नेम है पूरा सार्वजनिक सभा, इसको ध्यान से देखो। सार्वजनिक का लिटरल मीनिंग क्या होता है? ऑफ और फॉर ऑल द पीपल। हम कहते हैं सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक टॉयलेट, सार्वजनिक यानी कि सब लोगों के लिए, है ना, जो आप देखते नहीं हो वहाँ पे पब्लिक में आप देखते होगे, है ना। जो बहुत सारे एसोसिएशन थे वो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कंट्री में थे, लेकिन उनका एक ही गोल था। उनका गोल क्या था? उनका गोल था सॉवरेन होना, यानी कि इंडिपेंडेंटली सारे डिसीजन लेना। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है द डिससेटिस्फेक्शन विद ब्रिटिश रूल इंटेंसिफाइड इन 1870s and 1880s. The Arms Act was passed in 1878, disallowing Indians from processing arms. In the same year, Vernacular Price Act was also enacted in an effort to silence those who were critical of Indian government. The act allowed government to confiscate the assets of newspaper, including their printing press, if the newspaper published anything that was found objectionable. In 1883, there was a furor over the attempt by the government to introduce the Ilbert Bill. The bill provided for the trial of the British or European persons by Indians and sought equality between Indian and British judges in the country. But when no wide opposition forced the government to withdraw the bill, the Indians were enraged. The event highlighted the radical attitudes of British in India. तो अब क्या हुआ? डिससेटिस्फेक्शन दिखने लग गया था 1870 से 1880 के बीच में। जो आर्म्स एक्ट था वो पास किया गया था 1878 में। आर्म्स एक्ट में डिस्टेंट क्या होता था, ब्रिटिश ने इंडियंस जो लोग मतलब बंदूक चला सकते थे, क्योंकि ब्रिटिश बड़े चालाक थे, उनको पता था कि 1857 रिवॉल्ट जो हुआ था उससे जो है वो बड़े डरे हुए थे कि भाई हाँ अब इंडियंस में इतनी पावर तो आ गई कि भाई वो कम से कम अपने हथियार चलाने लग गए। बट आर्म्स एक्ट में हथियार नहीं अलाउ करता है, यानी कि अब वो हथियार नहीं चला सकते हैं। उसी ईयर उन्होंने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पास कर दिया। वर्नैकुलर का मतलब होता है हमारी खुद की लैंग्वेजेस में। अब लैंग्वेजेस में पहले से अखबार छपते थे, तो जो अखबार वाले होते थे वो जानकारी देते कि ब्रिटिश ऐसा क्यों कर रहे हैं, और लोगों को पता चलता था कि ये क्या है भाई, ब्रिटिश बहुत चालाक है, क्या कर रहे हैं, ये सब पता चलता था। बट अब ब्रिटिशर्स ने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट में पास किया कि भाई कोई भी न्यूज़पेपर उनके खिलाफ कुछ भी आर्टिकल नहीं लिख सकता है, और अगर वो ऐसा करता है तो उनको जेल हो जाएगी। फिर क्या हुआ डियर स्टूडेंट, 1883 में जो था इल्बर्ट बिल जो है पास हुआ था। बिल जो है कहीं ना कहीं क्या स्टेट करता था कि भाई यूरोपियन और इंडियन जजेस के बीच इक्वालिटी हो, दोनों को समान स्तर दिया जाए। ये नहीं कि भाई तुम्हारे कोर्ट में सिर्फ यूरोपियन जजेस ही हैं, तुम्हें इंडियन जजेस भी रखने पड़ेंगे, है ना। तो ये वो कहता था। बट जब वाइट अपोजिशन यानी कि जब जो अंग्रेज थे उन्होंने बहुत अपोज करा जो गवर्नमेंट के ये वाले लॉ को बिल को, तो जो है कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये जो है बिल जो है हट गया, ये विड्रॉ कर दिया गया था। और जो इंडियंस से बहुत ही गुस्सा आ गया था इंडियन को, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इंडियंस का थोड़ा बहुत तो कम से कम समान स्तर देते, और वो भी इन लोगों ने छीन लिया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इधर। The need for an all-Indian organization of educated Indians had been felt since 1880, but the Ilbert Bill controversy depended on this desire. The Indian National Congress was established when 72 delegates from all over the country met at Bombay in December 1885. तो देखो जो इंडिया थी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कहीं ना कहीं हमें एडुकेटेड इंडियंस की मतलब ज़रूरत थी, क्योंकि अगर एडुकेटेड इंडियंस आते तो कहीं ना कहीं हमें समान अधिकार या इंडिपेंडेंस थी मिलने के कुछ चांस होते। तो इसलिए 1880 से उसकी उन्होंने फेल्ट करा था। बट जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी वो जो है इस डिज़ाइन के चक्कर में ही हुई थी। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो कब स्टैब्लिश हुई थी? वो स्टैब्लिश हुई थी दिसंबर 1885 में, जब 72 डेलीकेट जो है ऑल ओवर द कंट्री कहाँ मिले थे? बॉम्बे में मिले थे।
The early leadership Dadabhai Naroji, Feroz Shah Mehta, Badruddin Tayabji, V.C. Banerjee, Surendra Nath Banerjee, Romesh Chandra Dutt, S. Subramanya Iyer, among other, was largely from Bombay and Calcutta. तो जहाँ तक जो ये लीडरशिप लीडर लोग थे ये सब बॉम्बे या कलकत्ता से ही थे. दूसरा जो था नारोजी, अ बिजनेसमैन एंड अ पब्लिश सेटल्ड एट लंदन. तो मैंने आपको बताया ना कि कौन नारोजी, दादा भाई नारोजी थे वो बिजनेसमैन थे और पब्लिश थे जो कि लंदन में सेटल हो गए थे. फॉर द टाइम मेंबर द ब्रिटिश पार्लियामेंट गाइडेड द यंगर नेशनलिस्ट, अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल ए ओ ह्यूम also played a part in bringing Indians from the various regions together. तो ए ओ ह्यूम का भी बहुत बड़ा रोल कहीं ना कहीं इसमें था. पब्लिश्ड का मीनिंग देख लेते हैं. समवन हु पब्लिशेस एन आइडिया बाय सर्कुलेटिंग इंफॉर्मेशन, स्पीकिंग, राइटिंग रिपोर्ट, स्पीकिंग एट मीटिंग्स. नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट. नेक्स्ट इन्होंने जो है यहाँ पे दे रखा है हु डिड कांग्रेस सीक टू स्पीक फॉर. ये पहली सोर्स है. द न्यूज़पेपर द इंडियन मिरर रोट इन जनवरी 1986, द फर्स्ट नेशनल कांग्रेस एट बॉम्बे इज द न्यूक्लियस ऑफ द फ्यूचर पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री एंड विल लीड टू द गुड कंसीवेबल मैग्नीट्यूड ऑफ आवर कंट्री मैन. बदरुद्दीन तयाबजी एड्रेस द कांग्रेस एज प्रेसिडेंट इन 1887. 1887 में वो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के और उन्होंने एड्रेस किया था. दिस कांग्रेस इज कंपेयर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नॉट ओनली ऑफ वन क्लास और कम्युनिटी ऑफ इंडिया बट ऑफ ऑल डिफरेंट क्लासेस ऑफ इंडिया. ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे दादा भाई नारोजी की एक छोटी सी केस स्टडी में. तो नारोजी बुक poverty and un British rule in India offered a scathing criticism of the economic impact of British rule. अब आ जाते हैं हम लोग नेशन इन द मेकिंग. It has often been said that Congress is the first 20 year was moderate in its objectives and method. तो देखो कांग्रेस जो शुरू के 20 ईयर्स थे उसमें मॉडरेट थी ऑब्जेक्टिव्स और मेथड के लिए. मतलब जो है इतना ज़्यादा कुछ ध्यान दिया नहीं, मतलब मॉडरेट रहे वो लोग. अब देखो कांग्रेस भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग रेडिकल्स और मॉडरेट्स में. ठीक है, आई विल टेल यू हाउ. ठीक है. During this period, it demanded greater voice for Indian in the government and in the administration. It wanted legislative council to be made more representative, given more power, and introduce provinces where none exist. It demanded that Indians be placed in the high positions in the government. For this purpose, it called for civil service examinations to be held in India as well, not just in London. तो इस पीरियड में क्या हुआ, उन्होंने ग्रेटेस्ट वॉइस इंडियन के लिए मांगी कि भाई इंडियन को भी एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दो और उनको भी ऐसे रिप्रेजेंटेटिव काम करने दो. मतलब ये सारी चीज़ें मांगी उन्होंने. फिर कहा, ये भी कहा कि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो सिर्फ लंदन में करवा रहे हो आपको इंडिया में भी करवाने चाहिए. और ये सारी चीज़ें जो है इंडियंस ने डिमांड करी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू. द डिमांड फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द पार्ट ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट रेसिज्म. ठीक है, तो इंडियनाइजेशन की डिमांड. Since most of the important jobs at that time were monopolized by white official, क्योंकि ज़्यादातर जो जॉब उस टाइम की थी वो सारे जो है वाइट पीपल यानी कि अंग्रेजों के पास ही थी जो बड़ी बड़ी जॉब्स थी. एंड द ब्रिटिश assumed इंडियंस कुड नॉट बी गिवन पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि भाई जो इंडियंस हैं इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी नहीं है बिकॉज इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है ये लोग, बहुत वो है, मतलब उनको ऐसा लगता नहीं था कि ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड कर सकते हैं. Since British officials were sending a major part of their large salaries homes, Indianization it hoped would also reduce the trade wealth of the England. Other demands included the separation of judiciary from the executive and the repeal of the Arms Act and the freedom of speech and expression. तो अब क्या हुआ, कहीं ना कहीं ब्रिटिश ऑफिसर को जो भी वो रिप्रेजेंटेटिव थे उसके उन्हें पैसे बहुत मिलते थे, है ना. अब पैसे बहुत मिल रहे तो क्या होता था, पैसे सीधे वो इंग्लैंड भेजते थे. बट अगर अब यहाँ पे आप इंडियन ऑफिशियल्स को रखोगे ब्रिटिश ऑफिशियल्स की जगह में तो क्या होगा, पैसे जो है इंडियंस के पास ही आएंगे और कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन हम लोग जो है इंडिया की वेल्थ है उसको बचा सकते थे. ठीक है, इस मेथड से. और भी कई डिमांड थी कि सेपरेशन हो जाए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का, क्योंकि ब्रिटिश कहते थे दोनों एक ही हाथ से कर
करते थे, जुडिशरी भी उन्होंने एक ही साथ रखा था और एग्जीक्यूटिव भी एक साथ, ठीक है। और वो साथ ही साथ ये भी चाहते थे कि जो आर्म्स एक्ट और आपने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास करा है, ये भी जो एक्ट्स है ये भी आप जो है फिर से हटा दो और हमें यूज़ करने दो, ठीक है। रिपील ऑफ आर्म्स, तो रिपील का मतलब क्या होता है, टू अंडो अ लॉ, अंडो अ लॉ लिख के होंगे मार्क्स मिल जाएंगे, टू ऑफिशियली एंड द वैलिडिटी ऑफ समथिंग सच एज लॉ, ठीक है। अब आते हैं द अर्ली कांग्रेस ऑल्सो रेज्ड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज, इट डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल हैड लेड टू द पॉवर्टी एंड फेमाइन्स। तो अब क्या हुआ, जो अर्ली कांग्रेस थे उन्होंने बहुत सारे इश्यूज रेज करे, नंबर ऑफ इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज। सबसे पहला उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो भाई ब्रिटिश रूल की वजह से क्या हुआ, पॉवर्टी यानी कि गरीबी बहुत बढ़ रही है और साथ ही साथ लोग जो है भूख के मारे मर रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू हैड impoverished peasant and zamindars, and export of grains to the Europe had created food shortages. The Congress demanded reduction of revenue, cut in military expenditure, and more funds for irrigation. तो अब क्या हुआ, क्योंकि लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा थे, जमींदार और पीजेंट बहुत परेशान थे उसके चक्कर में। दूसरा क्या था, ग्रेन्स का जो एक्सपोर्टेशन था वो यूरोप में ही जा रहा था, तो इससे क्या होता, फूड शॉर्टेज हो रही थी इंडिया में और फैमाइन्स हो रही थी। जो कांग्रेस है वो डिमांड करती है कि रेवेन्यू में आप थोड़ा रिडक्शन करो और जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसमें भी कट करो। उसके फिर वो चाहती थी कि आप लोग रेवेन्यू जो है फंड्स जो है थोड़े ज़्यादा रखो इरिगेशन के लिए। It passed many resolutions on salt tax, treatment of Indian laborers abroad, and sufferings of forest dwellers caused by an interfering forest administration, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो कि कांग्रेस ने कहने के करवाई। ऑल दिस शोज दैट डिस्पाइट बीइंग अ बॉडी ऑफ इलेक्टेड एडुकेटेड एलाइट, द कांग्रेस डिड नॉट टॉक ओनली ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोफेशनल ग्रुप्स, जमींदार और इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। तो भाई ये शो करते हैं कि जबकि वो एकदम एडुकेटेड एलाइट है यानी कि बहुत एडुकेटेड बॉडी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल ग्रुप्स के बारे में ही टॉक नहीं करा, बल्कि ज़मींदार और इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में भी बात करी। The moderate leaders wanted to develop public awareness about unjust nature of British rule. They published newspaper, wrote articles, and showed how British rule was leading to economic ruin. Of the country. They criticized British rule in their speeches and sent representatives to different parts of country to mobilize public opinion. तो अब क्या हुआ, जो मॉडरेट्स लीडर थे, ब्रिटिश मॉडरेट लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने कहीं ना कहीं क्या करा, वो चाहते थे कि भाई वो अवेयरनेस क्रिएट करें ब्रिटिशर्स के जो अनजस्ट रूल है इसके बारे में। तो वो क्या करते थे, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल रोड करते थे, टैम्पलेट्स बांटते थे। उसके बाद क्या होता था कि अपने जो ऑफिशियल्स हैं उनको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री भी भेजते थे ताकि वो जो है इस तो चीज़ को जो है पब्लिक तक पहुँचाए, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें जो थे ये कर रहे थे। They felt that British had respect for the ideals of freedoms of justice and so they would accept the just demands of Indians. तो उनको ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश के पास रिस्पेक्ट है फ्रीडम के आइडियल का, जस्टिस का, तो वो कहीं ना कहीं ये डिमांड जिंदगी पूरी कर लेंगे। What was necessary therefore was to express these demands and make government aware of feelings of Indians. तो उस समय क्या नेसेसरी था, उस समय नेसेसरी ये चीज़ थी कि कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स हम गवर्नमेंट को दिखाएं और दिखाएं कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी गवर्नमेंट ही थी, उस समय ब्रिटिश रूल कर रहे थे। सोर्स 2 पढ़ते थे, इन प्योरसूट ऑफ गोल्ड, दिस इज व्हाट अ मॉडरेट लीडर डिनशॉ वाचा वाज अ मॉडरेट लीडर। एग्जाम में आ सकता है हु वाज नेम वन मॉडरेट लीडर, यू विल राइट डिनशॉ वाचा, ठीक है। रोड टू नारोजी इन 1887, Feroz Shah is nowadays too busy with his personal work. They are already rich enough. Mr. Telang too remains busy. I wonder how, if all remain busy in the purest of gold, how can the progress of country be advanced? तो अब जो डिनशो वाचा है वो लिखते हैं नारोजी को, भाई फेरोज शाह भी इतना बिजी है, तेलांग भी इतना बिजी है, भाई अगर ये सभी बिजी रह जाएंगे तो क्या कंट्री डेवलप कर पाएगी। तो ये डिनशो वाचा ने लिखा था नारोजी को 1887 और क्या कहते हैं ये मॉडरेट लीडर थे, ठीक है। 1887 में जो थे नारोजी ने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एड्रेस भी किया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें डेट्स थोड़ी सी याद करना बिकॉज अभी बहुत सारी फैमिलियर डेट्स आने वाली है, ठीक है।
नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रीडम इज अ बर्थ राइट। ठीक है, बात है 1890s many Indian began to raise questions about the political style of Congress. In Bengal, Maharashtra and Punjab, leaders such as Bipin Chandrapal, Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai were beginning to explore more radical objectives and methods. तो अब जो 1890 में क्या होता है, बहुत सारे जो इंडियंस थे बहुत सारे क्वेश्चन रेज करने लगे थे, है ना, बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, सारी साइड से। जैसे बिपिन चंद्रपाल थे, बिपिन चंद्रपाल कहाँ से थे, बंगाल से थे। बाल गंगाधर तिलक कहाँ से थे, महाराष्ट्र से थे। और लाला लाजपत राय पंजाब से थे। ठीक है, लाल बाल पाल से भी आप इनके नाम जो है याद रख सकते हैं। ठीक है, ये जो है कहीं ना कहीं रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स और मेथड को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लगे थे। अभी रेडिकल्स के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट्स फॉर देयर पॉलिटिकल्स ऑफ प्रेयर। तो उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज करा मॉडरेट्स को, भाई कैसे तो इंसान हो तुम लोग, कुछ तो मेहनत करो। क्योंकि मॉडरेट्स क्या कर रहे थे उस समय, मॉडरेट्स सिर्फ ये चाहते थे कि भाई इंडियन का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव में थोड़ा सा उनकी जगह बन जाए। और क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि सिविल सर्विस नाम इंडिया में भी हो ताकि हम लोग दिखा सकते हैं। लेकिन रेडिकल्स क्या चाहते थे कि जल्द से जल्द उन्हें इंडिपेंडेंस मिले, है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा है, एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। दे आर्ग्यूड दैट पीपल मस्ट रिले ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, नॉट ऑन द गुड स्वराज। तो गुड स्वराज, ठीक है। तो अब क्या हुआ था, वो चाहते थे कि भाई लोग सिर्फ उनके ऊपर निर्भर ना रहे, कांग्रेस के ऊपर, कि भाई उन्होंने कांग्रेस को सेटअप करवाया है, कांग्रेस ही हर चीज़ करेगी, ऐसा तो था नहीं। तो वो कह रहे थे कहीं ना कहीं कि भाई खुद को, जब तक तुम लोगों के अंदर खुद नहीं जगाओगे कि भाई उनको कहीं ना कहीं अपने फ्रीडम के लिए फाइट करना है, तो भाई कैसे हो जाएगा इंडिपेंडेंस, है ना। तो भाई तिलक ने जो है एक स्लोगन रेज करी, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो आज़ादी मेरा जन्म शहीद अधिकार है, ये तो आपने सुनी होगी स्लोगन, वेरी फेमस, बाल गंगाधर तिलक हैव सेड दिस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग यहाँ पार्टीशन ऑफ बंगाल में। ठीक है, in 1905 Viceroy Curzon partitioned Bengal. At that time Bengal was the biggest province of the British India and included Bihar and parts of Orissa. तो अब वाइसरॉय कर्जन ने क्या करा, वाइसरॉय कर्जन भी ब्रिटिश के ही थे एक इंसान। ठीक है, अब जो है 1905 में क्या हुआ, उन्होंने बंगाल को पार्टीशन कर दिया। क्यों करा, अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगी, इन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। अभी मैं बता दूँ क्या हुआ। तो अब जो बंगाल था उस समय जो है इतने स्टेट्स का सेपरेशन हुआ नहीं था। तो उस समय क्या हुआ था, प्रोविंस जो बंगाल था बड़ा सा स्टेट, उसमें जो था बहुत पार्ट जो था बिहार का भी था, थोड़ा पार्ट उड़ीसा का भी था। तो अब ब्रिटिशर्स ने आर्ग्यू करा डिवाइडिंग बंगाल फॉर रीजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस यानी कि अच्छी तरह वो गवर्न कर सकते हैं। उनका कहना ये था कि भाई बंगाल बहुत बड़ी जगह है और वहाँ पे हमारा इतना गवर्नेंस हमारे हमसे हो नहीं पा रहा है, हम इतना गवर्न कर नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हम इसे पार्टीशन कर रहे हैं। अब देखते हैं ना पार्टीशन किस तरह का, बड़े चालाक लोग हैं। ठीक है, बट व्हाट डिड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मीन, हुज कन्वीनियंस डिड इट रिप्रेजेंट। भाई किसका कन्वीनियंस है, ऑब्वियसली जो ब्रिटिशर्स हैं उनके कन्वीनियंस के लिए, राइट। क्लियरली इट वॉज क्लोजली टाइड टू द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल एंड बिजनेसमैन। इवन सो, instead of removing the non-Bengali areas from the province, the government separated East Bengal and merged it with Assam. Perhaps the main British motives were to curtail the influence of Bengali politicians and to split Bengali people. क्योंकि मैंने बताया था ना, शुरू में मैंने बता दिया था, ज़्यादातर लोग कहाँ के थे, बंगाल के थे। बस बंगाल के ज़्यादातर पॉलिटिशियन थे। तो क्या करा ब्रिटिशर्स ने, क्या करा, उसको स्प्लिट कर दिया, पार्टीशन करा। कैसे करा, ईस्ट बंगाल और आसाम को तो मर्ज कर दिया एक साथ, और बाकी का जो एरिया था वेस्ट बंगाल वो इंडिया में साथ में ले लिया। तो इससे क्या होता था, जो ज़्यादातर पॉलिटिशियन थे बंगाल साइड के, वो लोग जो है कहीं ना कहीं आ नहीं पाते थे, है ना। और जो है कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस, उनकी जो पावर थी वो भी कम हो गई थी। तो इससे क्या हुआ, बंगाली पीपल स्प्लिट हो गए दो पार्ट्स में, हिंदू और मुस्लिम्स में। नेक्स्ट आते थे, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्लुएटेड द पीपल ऑल ओवर द इंडिया। पूरे इंडिया में जितने भी लोग थे सबको बहुत गुस्सा आने लगा, भी बंगाल को पार्टीशन कर दिया, वो हो गया, है ना। ऑल सेक्शन ऑफ कांग्रेस, द मॉडरेट्स एंड द रेडिकल्स। मैंने बताया था मॉडरेट्स एंड रेडिकल। मॉडरेट्स कौन थे, मॉडरेट्स चाह रहे थे कि भाई क्या हो, कि भाई इंडिया के लिए रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उनके लिए भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो, यहाँ पे हो, वो हो। लेकिन रेडिकल्स क्या चाहते थे, रेडिकल ये चाहते थे कि जल्द से जल्द हमें जो है इंडिपेंडेंस मिले, और इसके लिए क्या करना होगा, लोगों के अंदर जगाना पड़ेगा कि भाई तुम्हें हमारे ऊपर निर्भर नहीं रहना, तुम्हें अपने लिए खुद के लिए भी फाइट करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, as they may be called, opposed it. Large public meetings and demonstrations were organized and the novel method of mass protest developed. The struggle that unfolded came to be known as Swadeshi movement. तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो है, यस डियर स्टूडेंट,
तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे रेडिकल्स और मॉडरेट्स के बारे में। तो उन्होंने भी ये बहुत अपोज करा, और जो है पूरा मूवमेंट था कि भाई हमें जो है बंगाल के लिए लड़ना है, बंगाल का पार्टीशन रोकना है, बंगाल का पार्टीशन नहीं होना चाहिए। तो ये जो पूरा स्ट्रगल है ये नोन करके आया स्वदेशी मूवमेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल बट विद द इकोज एल्सवेयर टू। इन डाल्टेक्ले आंध्रा फॉर इंस्टेंस इट वॉज नोन एज वंदे मातरम मूवमेंट। तो अब बंगाल में तो इसको स्वदेशी मूवमेंट कहते थे, बट आंध्र प्रदेश साइड इसको हम लोग वंदे मातरम मूवमेंट कह रहे थे। अब आती हूँ मैं बाल गंगाधर की छोटी सी केस स्टडी है, देख लेते हैं फटाफट। नोटिस द नेम न्यूज़पेपर दैट लाइज ऑन द टेबल, केसरी, अ मराठी न्यूज़पेपर एडिटेड बाय तिलक। ठीक है, केसरी नाम है इसका, बाल गंगाधर तिलक थे, मराठी न्यूज़पेपर एडिट करा था, बिकिंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक्स ऑफ द ब्रिटिश रूल। ठीक है, अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। The Swadeshi movement ought to oppose British rule and encourage the ideas of self-help, Swadeshi enterprise, natural education, and the use of Indian languages. To fight for Swaraj, the radicals advocated mass mobilization and boycott British institutions and good. Some individuals also began to suggest that revolutionary violence would be necessary to overthrow British rule. तो जो स्वदेशी मूवमेंट था कहीं ना कहीं क्यों बनाया गया था, ताकि ब्रिटिश का रूल जो है हम लोग अपोज करें, और जो आइडिया है सेल्फ हेल्प का, स्वदेशी इंटरप्राइज यानी कि नेशनल एडुकेशन, और जो इनके गुड्स हैं वगैरह, इन सबको हमें नहीं यूज़ करना है, हमें अपने स्वराज यानी कि फ्रीडम के लिए फाइट करना है। जो रेडिकल एडवोकेटेड थे, रेडिकल ने मास मोबिलाइजेशन, और उन्होंने जो ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशन के उसको बॉयकॉट किया, और उनके गुड्स को भी। कुछ ने ये भी कहा कि भाई रिवॉल्यूशनरी वायलेंस बहुत नेसेसरी होगा ताकि हम ब्रिटिश को थ्रो आउट कर सकें। व्हाट इज रिवॉल्यूशनरी वायलेंस? तो रिवॉल्यूशनरी वायलेंस एक ऐसा वायलेंस होता है जिससे हम लोग रेडिकल चेंज करना चाहिए। रेडिकल चेंज मीन्स एक बड़ा चेंज, राइट? So the use of violence to make a radical change within society. ठीक है, the opening decades of 20th century were marked by other development as well. A group of Muslim landlords and Nawabs formed the All India Muslim League at Decca in 1906. तो अब क्या हुआ भाई, धीरे धीरे और भी एसोसिएशन आते जा रही थी, है ना। तो अब जो मुस्लिम लैंडलॉर्ड और नवाब का था, उन्होंने जो सेटअप किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसको जो डेका पे हुई थी, ठीक है, और 1906 में जो है ये बनी थी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। लीग ने क्या सपोर्ट करा? लीग ने सपोर्ट करा पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्योंकि उनको अपना एक अलग देश चाहिए था, राइट। मैं फिर बता रही, मुस्लिम्स को एक अलग देश चाहिए था। तो उन्होंने तो कहा कि हाँ भाई, ईस्ट बंगाल और आसाम साइड तो हमारे मुस्लिम लोग हैं, तो कोई बात नहीं, हमें तो हम तो इससे सेटिस्फाइड है, और बाकी जो हिंदू लोग वेस्टर्न साइड है, हमें कुछ नहीं करना उनसे, है ना। तो उन्होंने जो है सपोर्ट करा। तो उन्होंने डिज़ायर करा सेपरेट ऑफ इलेक्टोरेट्स फॉर desired separate electorates for Muslim, a demand considered by government in 1909। क्योंकि उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल सपोर्ट करा, इसलिए जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो है उनकी जो डिज़ायर थी यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो उनको चाहिए था, उसको एक्सेप्ट कर लिया 1909 में। ठीक है, अब देखो द सब सीट इन द काउंसिल वर नाउ रिजर्व फॉर मुस्लिम who would be elected by Muslim voters। ठीक है, this tempted politician to gather a following distributing favors on their own religious group। Meanwhile the Congress split in 1907। अब 1907 में क्या हुआ, कांग्रेस स्प्लिट हो गई दो पार्ट्स में, ठीक है। द मॉडरेट वर अपोज टू द यूज ऑफ बॉयकॉट्स। दे फेल्ट दैट इट इन्वॉल्व यूज ऑफ फोर्स, क्योंकि भाई रिवॉल्यूशनरी वायलेंस करना है, कुछ भी वायलेंस हो, कुछ भी हिंसा हो, तो उसमें जो है मारपीट होती है। और जो ये थे मॉडरेट्स वाले, ये लोग क्या सोचे थे कि भाई जो भी ये वायलेंस वगैरह करेंगे, जो भी ये लोग जो है बॉयकॉट वगैरह कर रहे हैं, इसमें जो है कहीं ना कहीं बहुत नंबर का जो है फोर्स लग रही है, क्योंकि ऑब्वियसली फोर्स लगेगी बहुत सारी। तो उन्होंने कहा कि भाई हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है। आफ्टर द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस कम टू बी डोमिनेट बाय द मॉडरेट्स विद तिलक फॉलोअर्स फंक्शनिंग फ्रॉम आउटसाइड। The two groups reunited in December 1915। तो दिसंबर 1915 में कांग्रेस के जो टू ग्रुप्स है फिर से रीयूनाइटेड हो गए, यानी कि पहले सेपरेट हो गए थे, फिर से मर्ज हो गए, बिकॉज उनका जो मेन मोटिव था वो इस समय ये था कि कहीं ना कहीं इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलानी है। The next year, the Congress and the Muslim League signed the historic Lucknow Pact and decided to work together for the representative government on the country। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं
काउंसिल का मैंने आपको बताया नहीं था, काउंसिल में जो है मुस्लिम के लिए सीट रिजर्व रहेंगी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंसिल? एन अपॉइंटेड और इलेक्टेड बॉडी ऑफ पीपल विद अ रिप्रेजेंटेटिव appointed or elected body of people with an representative advisory or representative function। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। सो आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट इन ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकम मास मूवमेंट involving peasant, tribals, students, and women in large number, and occasionally factory workers as well. Certain business groups too began to actively support the Congress in 1920s. Why was this so? तो अब देखो 1919 में क्या हुआ, जो स्ट्रगल था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल वो कहीं ना कहीं जो है मास नेशनलिज्म बन गया, मास मूवमेंट बन गया, बिकॉज ऑल इंडिया में बहुत सारे लोग जो है इसको सपोर्ट करते करते आ रहे थे। ठीक है, इज पीजेंट थे, ट्राइबल थे, वुमेन थी, स्टूडेंट्स थे, बहुत लोग थे। ठीक है भाई, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो जो एल्टर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। तो अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन जो इंडिया की थी थोड़ी थोड़ी जो है बिगड़ तो रही थी, पर कहीं ना कहीं कोई कोई लोगों को प्रॉफिट भी होता है। अभी देखते हैं आगे। इट लीड टू अ ह्यूज राइज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम्स एंड बिजनेस प्रॉफिट, increased in military expenditure, and the demand for wall supply led to the sharp rise in prices, which created great difficulties for common people. On the other hand, the business groups reaped fabulous profit from the war, as you have seen in chapter 7. The war created a demand of industrial goods, jute bags, cloth, rails, and caused the decline of imports from other countries into India. So, Indian industries expanded during the war, and Indian business groups began to demand greater opportunity for डेवलपमेंट। तो अब क्या हुआ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आई उसने जो है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी इंडिया की कोई ठीक ठाक थी नहीं। अब देखो हुआ क्या, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने जो है कहीं ना कहीं डिफेंस एक्सपेंडिचर और इंडिया बहुत बढ़ गया, क्योंकि भाई उन्हें लेदर के शूज चाहिए, बंदूकें चाहिए, है ना, जूट बैग चाहिए वगैरह वगैरह। तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो है टैक्स इंक्रीज कर दिए। तो अब गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज करे तो फिर क्या हुआ, जो इनकम और लोग जो पीस और एक साइड के लोग थे जिनको बड़ा बुरा लगता था भाई इतने सारे हाई प्राइस हो गए, हम कैसे बढ़े। लेकिन दूसरा साइड जो बिजनेस बिजनेस वाले लोग थे उनको जो है फेब्यूलस प्रॉफिट हुआ इससे, बिकॉज उनका सामान बिक रहा था, और वो जितना ज़्यादा हाई प्राइस रखे सामान तो बिकना ही था, बिकॉज फर्स्ट फॉर वॉर हो रहा था। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो इंडस्ट्रीज थी कहीं ना कहीं उनकी भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई, जूट बैग्स की डिमांड होने लगी, क्लोथ की डिमांड होने लगी, तो ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ने लग गए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो इंडस्ट्रीज थी वो ड्यूरिंग वॉर वो क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई। तो अब जो इंडियन और बिजनेस ग्रुप्स थे उन्होंने जो है ग्रेटर अपॉर्चुनिटी डिमांड की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। The war also had led the British to expand their army. Villages were pressurized to supply soldiers for an alien cause. तो अब जो तो विलेजर्स थे उनसे उन्होंने ले लेकर लोगों को एज अ सोल्जर बना के वो वहाँ पे युद्ध में लड़ा रहे थे। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर was sent to serve abroad. Many returned after the war with an understanding of the ways in which the imperialist power were exploiting the people of Asia and Africa with the desire to oppose colonial rule in India. Furthermore, in 1917 there was a revolution in China. तो चाइना में भी रिवॉल्यूशन हो रहा था 1917 में. News about peasant and worker struggles in the idea of socialism circulated widely, inspiring Indian nationalism. क्योंकि रशिया में भी वो लोग कितना स्ट्रगल कर रहे थे, वो सब कर रहे थे, तो इससे क्या हुआ, इंडियंस को कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिला कि भाई हम भी कर सकते हैं अगर वो रशिया में रिवॉल्यूशन हो रहा है तो, है ना। अब आते हैं द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, लेकिन ये करने से पहले लाला लाजपत राय की एक छोटी सी केस स्टडी पढ़ लेते हैं फटाफट यहाँ पे। A nationalist from Punjab, he was one of the leading members of radical group, which was the critical of politics of petition. He was also an active member of आर्य समाज। ठीक है, तो ये हो गया लाला लाजपत राय की केस स्टडी।
नेक्स्ट आते हैं द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी. It is in these circumstances that Mahatma Gandhi emerged as a mass leader. As you may know, Gandhi ji, aged 46, arrived India in 1915 from South Africa. जब गांधी जी की उम्र 46 ईयर्स की थी तो वो साउथ अफ्रीका से रिटर्न करते हैं इंडिया में 1915 में. साउथ अफ्रीका में एक्चुअली वो गए इसलिए होते हैं ना, वो लॉयर होते हैं, तो वो वहाँ साउथ अफ्रीका में कुछ मतलब यही काम करने गए होते हैं. वहाँ पे भी कुछ लड़ाइयाँ वगैरह चल रही होती है, उसको सॉल्व कर रहे होते हैं महात्मा गांधी, ठीक है. वहाँ पे तो वो रिटर्न करते हैं. हैविंग लेड इंडियंस इन द कंट्री इज नॉन वायलेंट मार्चेस अगेंस्ट रेसिस्ट रिस्ट्रिक्शन, ही वॉज ऑलरेडी अ रिस्पेक्टेड लीडर known internationally. His South African campaigns had brought him to contact with the various types of Indians. तो अब क्या हुआ, शुरू में जो महात्मा गांधी थे वो बहुत रिस्पेक्टेड लीडर थे. पहले तो उन्होंने पूरा इंडिया घूमा अच्छी तरह. उन्होंने देखा कि भाई हिंदू, मुस्लिम, फारसी, क्रिश्चियन, गुजराती, तमिल, नॉर्थ इंडियंस, अपर कास्ट, मर्चेंट, लॉयर वगैरह इन सब का मतलब घूमे. उन्होंने देखा कि भाई इंडिया को समझ रहे थे वो अच्छी तरह, है ना. तो महात्मा गांधी स्पेंड हिज फर्स्ट ईयर इन इंडिया ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री, अंडरस्टैंडिंग द पीपल, देयर नीड्स एंड ओवरऑल सिचुएशन. समझ रहे थे अच्छी तरह, ठीक है. अब देखो यहाँ पे केस स्टडी पढ़ लेते हैं, छोटी सी केस स्टडी है. फाउंडर्स ऑफ नटल कांग्रेस, दुर्बन, साउथ अफ्रीका, 1895. तो 1895 में महात्मा गांधी ने बहुत सारे अदर लीडर्स के साथ जो है नटल कांग्रेस का स्टैब्लिशमेंट किया टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है. तो यहाँ पे ये हो गया. अब डिस्ट्रिक्ट ये है आपके गांधी जी जिन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए कहा था, तो ये है, ठीक है. ये आगे बढ़ते हैं. हिज अर्लीस्ट intervention were the local movements in Champaran, Kheda and Ahmedabad where he came into contact with राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल. तो चंपारण मूवमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा. जब जो अंग्रेज लोग थे इंडिगो प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हाई रेवेन्यू कर रहे थे, मतलब परेशान कर रहे थे पीछे को, ठीक है. तो वहाँ अहमदाबाद में उनका कांटेक्ट हुआ राजेंद्र प्रसाद से और वल्लभ भाई पटेल से. इन अहमदाबाद ही लेड अ सक्सेसफुल मिल वर्कर स्ट्राइक इन 1918. तो 1918 में सक्सेसफुल मिल वर्कर स्ट्राइक उन्होंने करी, ठीक है. अब देखो हम इम्पॉर्टेंट डिटेल पढ़ने वाले हैं. मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज बिटवीन 1919 टू 1922. द रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है. 1919 शांति भी कॉल फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट एंड ब्रिटिश हैड जस्ट पास. तो रॉलेट एक्ट क्या होता है डिस्ट्रिक्ट. रॉलेट एक्ट में ब्रिटिशर्स ने क्या कहा था, और ये कहा कि भाई बिना किसी, अगर छोटी सी भी कोई समस्या आती है वो बिना किसी कार्रवाई के इंडियंस को गिरफ्तार कर सकते हैं विदाउट एनी ऑफिशियल वर्क. वो बिल्कुल गिरफ्तार कर लेंगे अगर उन्हें जरा सा भी शक हुआ, ठीक है. तो अब जो गांधी जी थे उन्होंने जो है कॉल करी, उन्होंने कॉल करी सत्याग्रह के लिए 1919 में, ठीक है, अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, ठीक है. द एक्ट curbed fundamental rights such as freedom of expression, certain policy power. Mahatma Gandhi and Muhammad Ali Jinnah and others felt that government had no right to restrict people's basic freedom. They criticized the act as devilish and tyrannical, ठीक है. डेविलिश और टिरानिकल से उन्होंने जो है एक्ट को क्रिटिसाइज करा. गांधी आस्क्ड इंडियन पीपल टू ऑब्जर्व 6 अप्रैल 1919 एज अ डे ऑफ नॉन वायलेंट अपोजिशन टू दिस एक्ट, ठीक है. तो उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल 1919 कौन सा डे होगा, नॉन वायलेंस, a day of non-violence opposition to this act. As a day of humiliation and prayer and hartal strike, सत्याग्रह सभाs was set up to launch movement. हम देखो यहाँ पे हमें दिया है एक छोटी सी केस स्टडी है. The walled compound in which General Dyer opened fire on gatherings of people, ठीक है. The Rowlatt Satyagraha turned out to be the first all-India struggle against British government. Although it was largely restricted to cities, in April 1919 there was a number of demonstrations and hartals in the country, and government used brutal measures to express them. The Jallianwala Bagh atrocities inflicted by General Dyer in Amritsar on Baisakhi Day 13 April was a part of this repression. On hearing about the massacre, Rabindranath Tagore expressed this pain and anger of the country by renouncing his knighthood.
व्हाट इज नाइटहुड? एन ऑनर ग्रांटेड बाय ब्रिटिश क्राउन फॉर एक्सेप्शनल पर्सनल अचीवमेंट और पब्लिक सर्विस। अब देखो नेशनल क्या होता है, रॉलेक्स सत्याग्रह जो होता है, मतलब क्या था, नॉन वायलेंस से वो लोग जो है थोड़ा बहुत आंदोलन करेंगे, ठीक है, वायलेंस नहीं करना है, आंदोलन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ब्रिटिश वाले परेशान थे इन सब चीज़ों से, तो उन्होंने उनको एक दो बार वार्न भी करा था कि भाई आप ऐसा मत करो, मतलब ये वे करेंगे। तो अब क्या हुआ, क्योंकि ये सब चीज़ें चल रही थी, तो एक दिन क्या हुआ, बैसाखी के दिन भी पंजाब में वो लोग फेस्टिवल मना रहे थे। नॉर्मल साहब का कंपाउंड था जहाँ पे वो लोग मतलब सब लोग इकट्ठा हुए थे एक जगह में। तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत मतलब ब्रिटिशर्स का बोल भी रहे होंगे, तो जनरल डायर ने विदाउट, ना तो उन्होंने इंडियंस को वॉर्न करा, ना उन्होंने कुछ करा, और डायरेक्ट जो है अपने सोल्जर्स को भेजा, वहाँ पे फायर कर दी, और सब जो है वहाँ पे अराउंड आप लोग सोच लो कम से कम 200 से 300 लोग तो वहाँ मर गए थे, और 1000 से ज़्यादा वहाँ इंजर्ड थे, ठीक है। तो ये कांड हुआ था अमृतसर में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। जब उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने ये सुना, तो उन्होंने अपना जो नाइटहुड है वो जो है रिनाउंस कर दिया, ठीक है, अपना पेन को दिखाने के लिए। During the Rolex Satyagraha, the participants tried to ensure the Hindus and Muslims they were also united to fight against British rule. This was also the call of Mahatma Gandhi, who always saw India as a land of all the people who lived in this country, Hindu, Muslim, and those of other religions. He was keen that Hindus and Muslims support each other in just cause. तो रॉलेक्स सत्याग्रह जो था ये करा गया था ताकि जो हिंदूज और मुस्लिम है कहीं ना कहीं यूनाइटेड हो जाए और वो लोग एक साथ आ जाए इंडिपेंडेंस की लड़ाई में। तो उन्होंने जो है महात्मा गांधी ने, जिन्होंने इंडिया को हमेशा वो लैंड समझा जिसमें जो है बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम और बहुत सारे अदर रिलीजन के, तो चाहते थे कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, हिंदू और मुस्लिम। खालिफा एगिटेशन एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं फटाफट। Yes, the Caliphate issue was one such issue. In 1920, the British imposed the harsh treaty on Turkish Sultan और खलीफा। तो अब देखो हुआ क्या था ना, मतलब कुछ लड़ाई वड़ाई चल रही थी, तो तुर्की मतलब हार गया था, जो भी हुआ होगा। तो उसमें क्या हुआ, जो इम्पोस्ट ब्रिटिशर्स ने उन्होंने एक हार्श ट्रीटी इम्पोज कर दी 1920 में टर्किश सुल्तान के ऊपर, जिनको अब खालिफा भी कहते हैं, ठीक है। पीपल वर फ्यूरियस अबाउट दिस एज दे हैड बीन कीन अबाउट द जलियांवाला बाग मैसेकर, क्योंकि वो ऑलरेडी जलियांवाला बाग से जो है जो मैसेकर हुआ था, इससे ऑलरेडी जो है मतलब पहचान थे या फिर उनको पता था ये सारे मैसेकर के बारे में, तो बड़े डरे हुए थे कि भाई अरे अब इनके उस पर भी हार्श ट्रीटी कर दी, कहीं फिर से कोई ऐसा चीज़ हो ना जाए, ठीक है। ऑल्सो इंडियन मुस्लिम वकील दैट द खालिफा बी अलाउड टू रिटेन कंट्रोल ओवर मुस्लिम स्कैट प्लेसेस इन ईस्टर्न वाइल ओटोमन एम्पायर, ठीक है। तो जो इंडियन मुस्लिम थे वो कह रहे थे कि भाई जो मुस्लिम के ऊपर इनका राज है वो आप यहीं पे कर लो, ईस्टर वाई ओटम टेम्पल है यहाँ पे इनको करने दो, है ना। तो उनकी भी कुछ ना कुछ डिमांड चल ही रही थी, ठीक है। द लीडर्स ऑफ खालिफा एगिटेशन दैट इज मोहम्मद अली एंड शौकत अली नाउ विश टू इनिशिएट फुल फ्लेज्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो अब वो भी इनिशिएट क्या करना चाहते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इनिशिएट करना चाहते हैं। और जो गांधी जी है उन्होंने सपोर्ट करा देयर कॉल और अर्ज द कांग्रेस टू कैंपेन अगेंस्ट पंजाब रॉन्ग्स, द जलियांवाला बाग मैसेकर, द खालिफात रॉन्ग एंड डिमांड स्वराज, ठीक है। तो फिर से वही इनका स्वराज वगैरह होने लग गया। द नॉन कॉपरेशन गेन मोमेंटम थ्रू 1921 टू 1922। तो अब ये मोमेंटम यानी कि इनको एक वो दौड़ दी होती जैसे मिल गई, जैसे ऐसा नहीं होता कोई इंसान भाग रहा है तो मतलब एक समय के लिए वो स्लो हो जाता है, उसका भी बहुत तेज में तेज भाग रहा है, तो मतलब इनका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उस समय बहुत एक्टिव था और बहुत ही ज़्यादा लोग इसमें जुड़ते जा रहे थे, ठीक है। Thousands of students left government controlled schools and colleges. Many lawyers such as मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, राजा गोपालचारी यानी कि ये भी आपके थे, और असम वली गेव देयर प्रैक्टिसेस। ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडर्ड एंड द लेजिस्लेटर बॉयकॉटेड। पीपल लिट पब्लिक बॉनफायर्स एंड फॉरेन क्लोथ्स, ठीक है। क्या हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे उन्होंने अपनी जो है
क्या कहते हैं, क्या करा, गवर्नमेंट कॉलेज से वो लोग आ गए भाग कर, और जो है उन्होंने लीव कर दिया। बहुत सारे लॉयर्स जो थे उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। ब्रिटिश के जो टाइटल थे उनको सबको बॉयकॉट करा, और साथ ही साथ पीपल ने जो है फॉरेन गुड्स और क्लोथ्स जो थे उन पर आग भी लगाई। द इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लोथ्स फेल ड्रास्टिकली बिटवीन 1920 टू 1922। ठीक है, but all these was merely a tip of iceberg. Large part of country were the brink of a formidable revolt. ठीक है, अब देखिए डिजिटल पीपल इनिशिएटिव देखते हैं लोगों ने क्या मदद करी है ना इस चीज़ों में। In many cases, people resisted British rule non-violently. In others, different classes group interpreting Gandhiji's call in their own manner, protesting in ways that were not accordance with the ideas. In either case, people linked with movement of local grievances. Let us look the few examples. तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी जगह पे थोड़े थोड़े आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए थे। जैसे इन गुजरात खेड़ा गुजरात में क्या हुआ था, पट्टीदार पीसेस जो थे उन्होंने ऑर्गेनाइज करा था नॉन वायलेंट मूव कैंपेन अगेंस्ट ब्रिटिश फॉर हाई रेवेन्यू डिमांड्स, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स की डिमांड क्या थी, हाई रेवेन्यू, और उन्होंने इस पर जो था कैंपेन करा। पट्टीदार पीसेंट थे जो कि खेड़ा गुजरात से बिलोंग करते थे। ठीक है, ऐसे ही इन कोस्टल आंध्रा एंड इंटीरियर तमिलनाडु लिक्योर शॉप वर पिकेटेड का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, पीपल प्रोटेस्टिंग आउटसाइड अ बिल्डिंग और शॉप टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम एंटरिंग, यानी कि वो शॉप के बाहर से आंदोलन कर रहे हैं ताकि लोग अंदर ना आ सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ट्राइबल्स एंड पुअर पीजेंट्स स्टेज नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह। तो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट जो आंध्र प्रदेश की थी, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो है फॉरेस्ट सत्याग्रह करे, क्योंकि भाई वो लोग भी बड़े परेशान थे, उनकी ज़मीन में कब्जा वब्जा कर रहे हैं वगैरह वगैरह से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेंडिंग देयर कैटल्स टू द इनटू द फॉरेस्ट विदाउट पेइंग गेजिंग फी। दे फ्री protesting because the colonial state had restricted their use of forest resource and various ways. They believe Gandhiji would get their taxes reduced and have forest regulations abolished. In many forest villages, Gandhi Raj was about to be established. तो बहुत सारे विलेजेस में जो था गांधी राज जो है एस्टेब्लिश होने लग गया। फटाफट आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे सोर्स 3 पढ़ लेते हैं। द क्रिटिकल लॉ सफरिंग, what did Mahatma Gandhi mean by ahimsa, non-violence? How could ahimsa became the basis of struggle? This is what Gandhi said. Non-violence comes to us through doing good continually without slightest expectation of return. That is the indispensable lesson in non-violence. In South Africa, I succeeded in learning the eternal law of suffering as the only remedy for underdoing wrong and injustice. It means positively the law of non-violence. You have to be prepared to suffer cheerfully at the hands of all and surrender, and you will wish ill to no one, not even to those who may have wronged you. ठीक है, तो गांधी जी बताते हैं कि अगर आप नॉन अहिंसा से करते हो चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिगड़ सकती है अगर आप अहिंसा करो, मारपीट करो, लेकिन अगर आप शांति से चीज़ों को करो तो बिगड़ने की जगह सुधर भी सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे इन सिंध नाउ इन पाकिस्तान Muslim leagues and peasants were very enthusiastic about Caliphate call. In Bengal too, the Caliphate non-cooperation alliance gave enormous communal unity and strength to national movement. In Punjab, the Akali एगिटेशन, ठीक है, खालीफात एगिटेशन के बारे में हमने पढ़ लिया। आप अकाली एगिटेशन ऑफ सिख सॉट टू रिमूव करप्ट महंट्स
महांस यानी कि रिलीजियस फंक्शनरीज ऑफ सिख गुरुद्वारास, ठीक है, करप्ट महांस को निकालने के लिए, supported by British from the Gurudwaras. This movement got closely identified by the non-cooperation movement in Assam. Tea greed labor shouting गांधी महाराज की जय. तो और जो आसाम में लोग थे वो गांधी महाराज की जय ये सब चिल्लाने लग गए थे, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं डिमांड अ बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस. दे लेफ्ट द ब्रिटिश ओन प्लांटेशन अमिड विच डेक्लेरेशन एंड वर फॉलोइंग गांधीज. इंटरेस्टिंगली इन आसाम एसएमएस वैष्णवा सॉन्ग्स ऑफ द पीरियड रिफर्स टू कृष्णा वॉज सब्सटीट्यूशन बाय गांधी राजा. तो मतलब अपने सॉन्ग्स में भी गांधी जी का नाम लेते हैं. बड़े गांधी जी से बहुत खुश थे और सोच रहे थे कि गांधी जी उनके लिए एक भगवान है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें गांधी जी के लिए होप करके इन्होंने आई थी. और यहाँ पे छोटा सा केस स्टडी टाइप की दे रखी है. द पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ गांधी, महात्मा गांधी, द इमेज in the popular image Mahatma Gandhi is often shown as divine being occupying the place within the pantheon of Indian god. In this image he is driving Krishna's chariot, guiding other nationalist leader in the battle against the British. नेक्स्ट आता है डी स्टूडेंट हम लोग. तो यहाँ पे है पीपल्स द पीपल्स महात्मा. We can see that from the above sometimes people thought of Gandhi a kind of Messiah as someone who could help them to overcome misery and poverty. तो उनको लग लगा कि गांधी जी सब कुछ है और वही हमें पॉवर्टी और बाकी चीज़ों से आगे बढ़ा सकते हैं. Gandhi wished to build a class community, not only conflict yet peasant could imagine that he would help them to fight against zamindar and agricultural labor, believed he would provide them land. At times, ordinary people created Gandhiji with their own achievement. For instance, at the end of powerful movement, peasant of Pratapgarh, the United Provinces, now Uttar Pradesh, managed to stop illegal eviction of tenants, but they felt that it was Gandhi who had won this demand for them. तो अब क्या हुआ, मतलब बहुत सारे लोगों से परेशान थे. जैसे मीज़न को जमींदार के ऊपर करता था, मतलब उनको ज़्यादा रेंट देना पड़ा है, बहुत सारी चीज़ें थी, है ना, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा थे. तो मतलब उन पीजेंट और प्रतापगढ़ के जो थे, जो कि यूनाइटेड प्रोविंस है अब नाउ इन उत्तर प्रदेश, तो उन्होंने जो है मैनेज करा इलीगल इविक्शन को कंट्रोल करने में, ठीक है, ऑफ टीनेंट्स. तो अब देखो सबसे पहले मैं बता देती हूँ इलीगल इविक्शन होता क्या है. द फोर्सफुली और अनलॉफुल थ्रोइंग ऑफ टीनेंट्स आउट ऑफ द लैंड दे रेंट, ठीक है. बट दे फेल्ट दैट इट वॉज गांधी जी हु हैड वॉन दिस डिमांड फॉर देम. तो लेकिन उनको लगने लगा कि हर चीज़ गांधी जी ही कर रहे हैं, मतलब हमने ही नहीं जीती है, हमारी मेहनत से नहीं हुआ है, ये सब गांधी जी की वजह से हुआ है ना. उसके बाद नेक्स्ट है at the other times using Gandhiji's name, tribals and peasants undertook action that did not conform to Gandhian ideals. ठीक है. अब आ जाते हैं यहाँ पे सोर्स 4 में. It was he who had got Bedakali stopped in Pratapgarh. ठीक है. The following is an extract from CID report in Kisan movement in Allahabad district, January 1921. The currency which Mahatma Minister Gandhi names has acquired even the remotest villages astonishing. No one seems to know quite who or what he is, but it is an accepted fact that what he says is so and what he orders must be done. He is Mahatma or Sadhu, a Pundit, a Brahmin who lives at the Allahabad, even Detua. The real power of his name is to trace back the idea that it was he who got Bedakali illegal eviction stopped in Pratapgarh. As a general rule, Gandhi is not thought of as a big antagonistic to government, but only to the zamindar. We are for Gandhi ji and the Sarkar.
तो मतलब गांधी जी को इतना ज़्यादा अच्छा मानने लगे थे लोग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ये किसान मूवमेंट है कब स्टार्ट हुआ था, जनवरी 1921 में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट हैपेंड इन 1922 टू 1929। चलिए देख लेते हैं फटाफट। महात्मा गांधी एज यू नो वॉज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट। तो जैसे कि आपको पता है कि महात्मा गांधी ने जितने भी मूवमेंट करे वो नॉन वायलेंट मूवमेंट थे, किसी में भी वायलेंट नहीं था, है ना। ही arbitrarily calls off the non-cooperation movement when in February 1922 a crowd of peasants set fire to the police station in Chaudi Chauda. 22 policemen were killed at that day. The peasants were provoked because the police had fired on their peaceful demonstration. तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था, कोई भी तुम्हारे ऊपर कितना ही बुरा क्या करे, लेकिन तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें हमेशा नॉन वायलेंटली उसका सामना करना चाहिए। पर इधर क्या हुआ, उन्होंने जो है कॉरपोरेशन मूवमेंट बंद कर दिया था फरवरी में, मतलब 2022 में। क्योंकि भाई उन्होंने जब उनको पता चला कि भाई पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पे फायर सेटअप कर दी गई है चौड़ी चौड़ा में, और 22 पुलिसमैन वहाँ के जो थे मर गए थे। और पीजेंट ने ऐसा इसलिए करा बिकॉज पुलिस ने उनके पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन में जो थी फायर कर दिया था, इसलिए। Once the non-cooperation movement was over, Gandhi followers stressed the Congress must undertake constructive work in rural areas. Other leaders such as Chitta Ranjan Das and Motilal Nehru argued that the party should fight elections to the council and enter them in order to influence गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो बहुत सारे लोग अलग अलग डिमांड यहाँ पे कर रहे थे, जैसे चित्ता रंजन, मोतीलाल नेहरू कह रहे थे कि भाई आप जो है कहीं ना कहीं एंटर करो ताकि आप गवर्नमेंट पॉलिसीज में इन्फ्लुएंस कर सको। थ्रू सिंसियर सोशल वर्क इन विलेजेस इन मिड 1920, Gandhians were able to extend the support base. This provided very useful launching of civil disobedience movement in 1930। इसमें वो लोग ब्रिटिशर्स का कोई भी कहना नहीं मानते हैं। The two important developments in mid-19th century were the formation of Rashtriya Swayam Sevak Sangh (RSS) and a Hindu organization and the Communist Party of India. These parties were held very differently ideas about the kind of country India should be. Find out their ideas with the help of your teacher. The revolutionary nationalist by Bhagat Singh was also too active in this period. Who was revolutionary nationalist? Bhagat Singh, ठीक है। नेक्स्ट आता है चित्ता रंजन दास में, यहाँ पे छोटी सी केस स्टडी है। A major figure in the freedom movement, Das was a lawyer from East Bengal. He was the especially active in non-corporation movement. आगे बढ़ते हैं, साइमन कमीशन में आते हैं। Simon Commission. In 1927, British government in England decided to set the commission headed by Lord Simon to decide India's political future। ठीक है भैया, तुम डिसाइड करो, अच्छी बात है, लेकिन इसमें कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। The commission had no Indian representative. The decision created a outrage in India. All political groups decided to boycott commission. When the commission arrived, it met with the demonstration with the banner saying, "Simon, go back." ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं डी स्टर्न हम लोग। द डिकेट्स क्लोज्ड द कांग्रेस डिजॉल्विंग टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए वो फाइट करने लग गए। इन 1929 अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। कॉन्सिक्वेंटली इंडिपेंडेंस डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 जनवरी 1930। अब आ जाते हैं हम लोग, इट टेक्स लाउड वॉइस टू मेक द डेफ हियर। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह के बारे में ये केस स्टडी फटाफट पढ़ते हैं। रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट सच एज भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव एंड अदर्स वांटेड टू फाइट अगेंस्ट colonial rule and rich exporting classes through a revolutionary worker and peasant. For this purpose, they founded Hindustan Social Republican Association, which is HSRA, which is Hindustan
सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। इन 1928 इन एट फेरोज फेरोज शाह कोलकाता इन दिल्ली, ठीक है, फेरोज शाह कोलकाता इन दिल्ली। और 17 दिसंबर 1928 भगत सिंह आज़ाद एंड राजगुरु एसिसिनेटेड सुंदर, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था, किसकी डेथ में इन्वॉल्व हुआ था, लाला लाजपत राय की डेथ में, ठीक है। और 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह एंड बी के दुत through a bomb in Central Legislative Assembly. His aim was, at the aim as the leaflet explained, was not to kill but to make deaf hear. उनका मकसद ये नहीं था कि भाई वो लोगों को मार दे, उनका मकसद था खाली वो बहरे कर दे उनको, and remind the foreign government of its college exploitation. Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were executed on March 23, 1931, और एट दैट टाइम भगत सिंह एज वॉज ओनली 23 years, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग द मार्च टू डांडी, ठीक है। पूर्ण स्वराज would never come on its own. It had to be fought for. In 1930, Gandhi declared that he would lead a march to break salt law. तो अब जो है सॉल्ट लॉ की तरफ आते हैं। तो अब 1930 में क्या हुआ, जो गांधी जी ने थे उन्होंने कहा कि भाई वो सॉल्ट लॉ को भी तोड़ेंगे। सॉल्ट लॉ क्या एम कहता था कि भाई आप अपना खुद का सॉल्ट नहीं बेच सकते हो और नहीं निकाल सकते हो सॉल्ट, आप खुद आपको हमसे ही खरीदना पड़ेगा और हाई हाई प्राइजेस में। तो भाई सॉल्ट एक बेसिक नीड है, अगर आप अपने बेसिक नीड नहीं देते तो बहुत गलत चीज़ है ना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्टेट had a monopoly to manufacture and sale of salt. Mahatma Gandhi, along with other nationalists, reasoned that it was sinful to tax salt since it is such an essential item of our food. Salt was related to the general desire of freedom to specific grievance shared by everybody, and thus did not divide rich and poor. Gandhi ji and his followers marched over 240 miles from Sabarmati to the coastal town of Gandhi, where they broke the government law by gathering natural salt around the seashore, boiling sea water to produce salt. तो भाई इन्होंने सॉल्ट लॉ भी तोड़ दिया था 1930 में, 6 अप्रैल 1930 में, ठीक है, यहाँ पे दिया भी है वो। तो 240 माइल्स ही चले साबरमती से कोस्टल टाउन ऑफ दांडी में। तो मतलब इन्होंने सॉल्ट लॉ तोड़ने के लिए भी बहुत वो करी मेहनत। अब आ जाते हैं हम लोग वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, अंबाबाई फ्रॉम कर्नाटका। Women from diverse background participated in national movement, young and old, single and married. They come from rural and urban areas, from both conservative and liberal homes. Their involvement was significant for freedom struggle, for women's involvement and themselves personally, ठीक है। तो वुमेन्स भी कहीं ना कहीं आई। Both British official and Indian nationalists felt that women participation gave the national struggle immense force. Participation in freedom movement brought women out of their homes. It gave them a place in the professions, in the government governance of India, and it could pave them the way of equality with men. What such partition meant for women is best recounted by them. Ambabai of Karnataka had been married at age 12 and was widowed in age 16. She picketed foreign court. Picketed means again protesting outside the shops to stop entering them inside. ठीक है, to stop or prevent others from entering. ठीक है। तो अन्ना भाई जो थी उन्होंने पिकेटेड करा फॉर ग्रोथ को इन उडुपी। शी वॉज अरेस्टेड, सर्व्ड अ सेंटेंस एंड री अरेस्टेड। बिटवीन प्रेजेंट टर्म्स शी मेड स्पीचेस, taught spinning and organized Prabhat Fairy. Amabai regarded this the happiest day of her life because it gave them new purpose and commitment. Women, however, had to fight for their right to participate in the movement. During salt satyagraha, for instance, even Mahatma Gandhi was initially opposed to women's participation.
सरोजिनी नायडू हैड टू परसुएड हिम टू अलाउ वुमेन टू ज्वाइन द मूवमेंट। तो इन्होंने भी वुमेन्स को नहीं आने दिया आंदोलन के टाइम, मतलब जो भी फाइट हो रही थी। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, peasants, tribals, and women participated in large number. A business federation published a template on salt issue. The government tried to crush the movement through brutal action against peaceful satyagrah. Thousands were sent to jail. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। अब यहाँ पे केस स्टडी पढ़ लेते हैं सरोजिनी नायडू के साथ जो दी है। Sarojini Naidu with Mahatma Gandhi in Paris 1931. Active in the national movement. In early 1920, Naidu was the significant leader of Dandi March. She was the first Indian woman to become woman to become president of Indian National Congress in 1925 में। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, द कंबाइंड स्ट्रगल्स ऑफ इंडियन एंड पीपल बोर फ्रूट्स व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन 1935 prescribe provincial autonomy. Provincial autonomy means capacity of the provinces to make relatively independent decision while remaining within a federation. And government announced the election to provincial legislature in 1937. The Congress formed government in 7 but out of 11 provinces. In September 1939, after 2 years of Congress rule in the provinces, the Second World War broke out. ठीक है, तो भाई 1939 में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी आ गई। क्रिटिकल ऑफ हिटलर, कांग्रेस लीडर्स वर रेडी टू सपोर्ट ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर, but in turn they wanted that India granted independence after the war. The British refused to concede the demand. The Congress minister resigned in forest. तो अब देखो डिस्टेंट क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर हुई तो कांग्रेस जो थी बहुत रेडी थी, मतलब उनको सपोर्ट करने के लिए, बट उन्होंने एक चीज़ मांगी बदले में। उन्होंने कहा कि बदले में आप वॉर के बाद हमें जो है पूरी इंडिपेंडेंस दे देना, बट उन्होंने जो है उसको रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है, वीर लखन नायक वॉज हैंग। ठीक है, वीर लखन नायक के बारे में पढ़ते हैं। सो बाजी मोहम्मद द प्रेसिडेंट ऑफ बाजी मोहम्मद was a president of the student Narbannpur Congress in Odisha. In 1930 reports। ठीक है, on August 25, 1942, 19 people died on the spot in police firing in Paperandi। तो क्या हुआ डियर स्टूडेंट, ऑन अगस्त 1925 अगस्त 25 1942 में क्या हुआ, 19 पीपल जो थे मर गए थे, वो पुलिस में फायरिंग कर रहे थे पेपरंडी इन नबरंगपुर। ठीक है, नबरंगपुर। तो over 300 were jailed and more than 1,000 were jailed in the Korapur district. Several were shot and executed. Veer Lakhal Nayak, a legendary tribal leader who defied the British, was hanged. Nayak, Bhaji tells us, was not worried about the being executed. Only said that he would not live to see freedom down. तो वो सब इतना इसलिए सैड थे कि भाई वो फ्रीडम जब हो जाएगा वो वाला समय नहीं देख पाएंगे। Baji Mohammed mobilized 20,000 people to join national struggle. He offered satyagraha and many times over he participated in protest against the Second World War and in Quit India movement in several long jail terms. अब आ जाता है डियर नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट का बनाया गया। क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942। तो 1942 अगस्त 25 को क्या हुआ था, आपके 19 पीपल मर गए थे जब पुलिस फायरिंग हुई पपरंडी में, नबरंगपुर में, और 300 से ज़्यादा इंजर्ड थे। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में जेल हो गए थे मोर देन 1,000। और जो वीर लखन नायक थे, लेजेंडरी ट्राइबल लीडर थे, वो भी हैंग्ड हो गए थे। तो और जो भाजी मोहम्मद थे उन्होंने 1,000 से ज़्यादा को मोबिलाइज किया था। ठीक है,
अब नेक्स्ट आते हैं नीचे हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। यहाँ पे लिखा है डेमोन्स्ट्रेटेड क्लैश्ड विद पुलिस एल्सवेयर, मैनी थाउजेंड वर किल्ड ओवर एंड थाउजेंड किल्ड, मैनी मोर वर इंजर्ड। ठीक है। Mahatma Gandhi decided to initiate the new phase of movement against British in the middle of the Second World War. The British must quit India immediately. He told them to the people. He said, "Do or die." तो उन्होंने बोला कि करो या मरो। और फिर नेक्स्ट है in your effort to fight the British, but you must fight non-violently. तो फिर non-violently फाइट करना है, मतलब ये भी नहीं है कि मारपीट करने में मर जाओ, ऐसा भी नहीं था। ठीक है। Gandhiji and other leaders were jailed at once, but movement spread. It especially attracted peasants and the youth who gave up their studies to join it. Communication and symbols of state authority were attracted over the country, and many areas the people set up their own governments. तो मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ऐसे करके आपका स्टार्ट हुआ। द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिश वर सीवियर repression. By end of the 1943, over 90,000 people were arrested and around 1,000 people were killed in police firing. In many areas, orders were given to machine guns and crowd from airplanes. Next आता है towards independence and partition. ठीक है। Meanwhile, 1940 Muslim League had moved revolution demanding independent states for Muslim the northwestern and eastern areas of the country. The resolution did not mention partition of Bengal. ठीक है। तो अब जो है 1940 में मुस्लिम लीग ने जो है रिजोल्यूशन डिमांड करा कि भाई मुस्लिम्स के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट होने चाहिए, लेकिन जो है कहीं ना कहीं रिजोल्यूशन ने ये मेंशन नहीं किया था कि पार्टीशन और पाकिस्तान। ठीक है। सो व्हाई डिड लीग फॉर आस्क फॉर ऑटोनोमस अरेंजमेंट ऑफ फॉर मुस्लिम्स इन द सब कॉन्टिनेंट? From late 1930, the League being viewing the Muslim as separate nation from Hindus in developing their nation. It may have been influenced by the history of tension between some Hindus and Muslim groups in 1920s and 1930s. ठीक है। फिर इसमें लिख रखा है, अच्छा आपकी बुक में वो नहीं दिया है तभी मैं बोलूँ। ठीक है। तो आपकी बुक में सब कॉन्टेंट दिया है, बट हमारी बुक में थोड़ा और भी आगे दिया है। ठीक है। सो यहाँ पे दिया है कि हमें, अच्छा आपकी बुक में डायरेक्ट फ्रॉम से स्टार्ट करें, बट हमारी बुक में जो है ना, मेरी जो बुक है बहुत पुरानी बुक है, तो जिसमें पुरानी बुक में जो है आपका यहाँ से नहीं है स्टार्ट। जो आपका ये स्टार्ट है ये जो है आपका हमारी जो नई बुक के हिसाब से इट इज स्टार्टिंग। अच्छा आपकी बुक में फ्रॉम 1830 इधर दिया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से देख लो आप लोग। मोर तो यहाँ पे मोर आपके उसमें दिया है इधर। ठीक है। मोर इम्पोर्टेंटली द प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 सीम टू हैव कन्विंस्ड द लीग दैट Muslims were minority and they would always have to play second fiddle in any democratic structure. It feared that Muslims may even go in unrepresented. The Congress, the rejection of League, the desire for joint Congress League government in United Provinces in 1937 was also annoyed by the League. ठीक है। तो वो जॉइंट कांग्रेस बनाना चाहते थे, वो भी लीग ने जो है एक्सेप्ट नहीं करा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं द कांग्रेस फेलियर टू मोबिलाइज मुस्लिम मासेस इन 1930s अलाउड लीग टू वाइडन इट्स सोशल सपोर्ट. इट सॉट द एनलार्ज द सपोर्ट ऑफ द अर्ली 1940 when most Congress leaders were in jail. At the end of the war in 1945, the British opened negotiation between Congress, the League, and themselves for independence of India. The talks failed because the League saw itself the sole outspoken of India's Muslim. The Congress could not accept the claim since the large number of Muslims still supported it. Elections to provinces were again held in 1946. Congress did well in general constituencies. General constituency means election districts with no reservation for any religious or other communities.
But the League's success in the seats reserved for Muslims was spectacular. It persisted with its demand for Pakistan. In March 1946, British cabinet set up three-member missions to Delhi to examine this demand and to struggle a suitable political framework for a free India. This mission suggested that India should remain united in constitution itself as a loose confederation with some autonomy for Muslim majority areas, but it could also get Congress and Muslim League to agree with specific details of proposal. Partition now became more or less inevitable. ठीक है, तो अब ये करने से पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत केस स्टडी जो है ये पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ जवाहरलाल नेहरू की केस स्टडी देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू लिसन्स टू महात्मा गांधी बिफोर द बॉम्बे सेशन ऑफ कांग्रेस जुलाई 1946. Gandhi disciple, a Congress socialist and internationalist, Nehru was a leading architect of India national movement of free India economy and polity. ठीक है, तो ये पढ़ लिया। अब हमें ये पढ़ना है। तो Maulana Azad, which is other members at Congress Working Committee, Sevagram in 1942. Azad was born in Mecca to Bengali father and an Arab mother. Well versed in several languages, Azad was a scholar. Azad was a scholar of Islam and an exponent of notion of Wahadat-e-Deen. The essential oneness of all religion, an active participant in Gandhian movement, and a staunch advocate of Hindu-Muslim unity. He was opposed to Jinnah's two-nation authority. चक्रवर्ती राजा गोपालचारी चक्रवर्ती राजा गोपालचारी speaking to Gandhi before Gandhi Jinnah talks 1944. A veteran nationalist and leader of salt satyagraha in South, Raja Gopalachari, popularly known as Rajaji, served as member of interim government in 1946 and as a Free India first Indian government general. फिर आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल में played an important role in negotiation independence during 1945 to 1947. Patel hailed from the impoverished peasant proprietary family of Nadiad, Gujarat, a foremost organizer of freedom movement from 1918 onwards. Patel served as president of Congress in 1931. Muhammad Ali Jinnah with Mahatma Gandhi, Bombay, September 1944, and an ambassador of Hindu-Muslim unity until 1920. Jinnah played an important role in making of Lucknow Pact. He recognized an Indian Muslim League after 1940 and became the major outspoken for the demand of Pakistan. तो अब यहाँ पे छोटी सी केस स्टडी अगेन है। खान अब्दुल गाफर खान, the Pashtun leader from northwest frontier province, with his colleagues at the peace march through Bihar, March 20, 1947. Also known as Badshah Khan, he was the founder of Khudai Khid Matgars, a powerful non-violent movement against Pathans of his province. Badshah Khan was strongly opposed by the partition of India. He criticized Congress colleagues for agreeing to the 1947 division. अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका थोड़ा सा और है डियर स्टूडेंट, आपकी बुक में नहीं दिया है बट हमारी बुक में दिया है, मैं पढ़ के बता देती हूँ। आफ्टर द फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन द मुस्लिम लीग, अच्छा आपकी बुक में भी दिया है वो, हाँ यहाँ पे दिया है डियर स्टूडेंट। After the failure of cabinet mission, the Muslim League decided the mass agitation for winning its Pakistan demand. It announced 16 August 1946 as Direct Action Day.
ठीक है, 16 अगस्त 1946। और जो आपका एक और दिन मैंने आपको बताया था 6 अप्रैल 1919, वो था डे ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, 16 अगस्त 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे। On this day, riots broke down at Calcutta, lasting several days and resulting in death of thousands of people. By March to 1947, violence spread to different parts of North India. Many thousand people were killed, and numerous women had to face untold brutalities during the partition. Millions of people were forced to flee their homes, thrown asunder their homelands. They were reduced being refugees in alien land. Partitions also mean that India changed many of its cities, and a new country, Pakistan, was born. So the joy of country independence from British rule come mixed with the pain and violence of partition. तो अब refugees from Roy Throne पंजाब gather at न्यू दिल्ली इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। ठीक है, तो यहाँ पे एल्सवेयर आपकी बुक में नहीं दिया है, बट पुरानी बुक में एल्सवेयर भी है। So dear student, we are directly moving on to the question answers. Yes, dear student, the first question of this complete session is, why were people dissatisfied with British rule from 1870s to 1880s? The British were, now I am directly telling you answers in English. So British were exercising the resource of India. First point. Second, British were exercising the lives control over the lives of its people, and until this control was over, the India could not be for Indians. Third, the Arms Act was passed in 1878, disallowing Indians from processing arms. Fourth, Vernacular Press Act was passed in 1878 in an effort to silence those who were critical of government. नेक्स्ट आ जाते हैं, हु डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस विश टू स्पीक फॉर? सो द कांग्रेस वॉज composed of representative not only of one class or community, but of all the different communities of India. Hence, the parties wish to speak for the mass fight for the freedom struggle. Question number third. What economic impact did the First World War have on India? So, the first point, the First World War was altered the economic and political situation in India. Second point, it led to the huge risk in defense expedition of government in India. Huge rise expenditure of government of India. Third, the government in turn increased taxes of individual incomes and business profit. Fourth, increased military expenditure and the demands of war supplies led to the sharp increasing prices of prices, which created great difficulties for common people. Sixth point, on the other hand, business groups reaped fabulous profit from the war. The First World War was the decline of imports from other countries into India. The next target is student, what did the Muslim League resolution of 1940 ask for? So in 1940, the Muslim League had moved a resolution demanding independent states for Muslims in northwestern and eastern areas of country. The resolution did not mention partition of Pakistan. नेक्स्ट आ जाते हैं, who were the moderates? How did they propose to struggle against British rule? The moderate leader, first point, the moderate leader wanted to develop public awareness about unjust nature of British rule. Second, they published newspaper, wrote articles,
and showed how British rule was leading to economic ruin of the country. Third, they criticized British rule in their speeches and sent representatives to different parts of country to mobilize public opinions. Fourth, they felt that the British had respect for ideals of freedom and justice, and so they would accept the just demands of Indians. क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं. How was the politics of the radicals within the Congress different from that of moderates? So, first point, policies. Okay, policies of radicals within the Congress were different from that of moderates. The fight for Swaraj, the radicals advocated mass mobilization and brought the British institution and goods and brought British institution and goods. So bonfire it should be. So, second point, some individual also began to suggest that revolutionary violence would be necessary to overthrow British rule. Moderates, third point, moderates on the other hand, some wanted to follow rules, the laws and the orders posed by British. तो नाउ हम लोग डायरेक्टली ये सॉल्ट लॉ वाला जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग पढ़ेंगे बिकॉज 7 वाला आपके लिए है. ठीक है. So why did Gandhi choose to break salt law? So the salt law related to the general desire. Salt law related the general desire of freedom to a specific grievance shared by everybody, and did not divide the rich and the poor. Hence, in 1930, Gandhiji declared that he would lead a march to break salt law. So here, dear student, we have completed our chapter. I hope that you liked the video and enjoyed. Thank you so much for watching.